Hello students, welcome to Europedia. I am Jitendra Tyagi and I am here to discuss about the important documents required for physical reporting. Okay, as all of you know that the time to physical report at the allotted institute is nearby. So, what important documents you have to keep prepared, okay, so that you can carry them with you for physical reporting. So, those I am going to discuss here. Okay. So, what are the important documents? Let us discuss one by one. First one is provisional admission letter downloaded from the CCMT portal. Okay, all of you know about this provisional admission letter. You can download it from the CCMT portal. So, you can take its print out and you have to carry it with you while going for physical reporting. Okay, so इसका print out लेके रखना है आपको पहला point. Second one is original gate score card. Okay, so the gate score card which you have used for CCMT registration, that original copy, okay, you have to keep with you, and also keep some photocopy. Okay, self attested photocopy also keep with you, some 2 or 3 photocopies, but original also you have to carry with you for the physical reporting, right? Then third one is original certificate of date of birth issued by competent authority. Okay, so if you have a birth certificate जो आपका म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से मिलता है at the time of birth, if you have original birth certificate, okay, then take that with you along with its photocopies, 1 or 2 photocopy and original birth certificate, right? And if you don't have birth certificate, then high school board certificate. Okay, there is a certificate you get in high school, or if your certificate is not, if you, nowadays some students are getting both mark sheet and certificates joint combinedly. Okay, so that you have to carry with you. If you have both certificate and mark sheet separately, then the certificate in which there is mentioning of your date of birth in high school certificate, you have to carry that with you also along with the mark sheet also. And if you have only one in which they have written certificate as well as mark sheet, okay, they are not two different things, then carry that with you. Okay, that will be your birth certificate. In now original mark sheet of class 12th. Okay, so 12th class mark sheet you have to carry with you, original as well as photocopy. Okay, in all you have to keep a photocopy also, and you have to keep that self attested with you, and they will return all these documents with the original documents, they will not submit. Okay, or if they submit at the time of admission, later after 1 or 2 months you can get back them. Okay, some institute take the original documents for some time, okay, for maybe 1 semester, and then they return back, or some institute may return them by checking just. Okay, so that depend upon the institute, right? Now original grade mark sheet of qualifying examination for all semesters or years. Okay, so original BTech mark sheets of all semesters, years you have to carry with you along with the photocopies. Okay, then original degree certificate or provisional certificate. If you don't have original degree certificate with you, institute provide provisional certificate during the just after the declaration of the result, they provide some provisional certificate also. Okay, because it takes some time to provide the original degree certificate, so keep that with you, provisional certificate. Okay, then original course completion certificate from the head of the university. So if your course is completed, your exams are over, okay, but result is not declared, you don't have the mark sheet, so in that case you have to get it from your HOD, your college principal. Okay, original course completion certificate, this is very important. Okay, so immediately go to your college, BTech college, and get it from there. Okay, जो आपके प्रिंसिपल हैं कॉलेज के, आपने HOD से लिखवाना है, उसके बाद प्रिंसिपल फाइनल उसको करेंगे आपको, या डायरेक्टली प्रिंसिपल ऑफिस में जाके आप वहां पे बोल सकते हो, रजिस्ट्रार ऑफिस में बोल सकते हो दैट यू नीड कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट टू गेट एडमिशन इन द NITs, right? So this you have to get from your college last attended, BTech college. Okay, and undertaking by those candidate whose result is awaited. Along with this original course completion certificate, you have to give an undertaking also. Okay, so that your result is awaited. So what will be the format of course completion certificate? You can see here that we have taken from NIT Surathkal website. This is a format of course completion certificate. You can read it. To be issued in the official letterhead of the institute
or university. Okay, and these details will be filled, your name and course, these things, and here will be signature of the principal और जो भी अथॉरिटी वहां पे है इसको प्रोवाइड करने के लिए, और डेट. तो ये आपको कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट गेट लेना है. आपको किनको लेना है? जिनके पास डिग्री नहीं है, रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है जिनका, ठीक है, उन बच्चों को ये अपने पास लेना है. ओके, जो फाइनल के स्टूडेंट्स हैं अभी उनको ये अपनी कॉलेज से लेना है, राइट. देन वी हैव undertaking for final year. Okay, so if you are final student, you have to give one undertaking also. Undertaking by candidates who have appeared for qualifying degree examination or awaiting for results. तो साथ में उस सर्टिफिकेट के साथ आपको ये अंडरटेकिंग भी देनी है. ये फॉर्मेट में आप खुद भी टाइप कर सकते हो, वर्ड में प्रिंट आउट ले सकते हो और उसकी डिटेल को फिल कर सकते हो, ठीक है. और ऐसा फॉर्मेट नीचे साइन भी करना है आपको, ठीक है. ये आपको एनआईटी, किसी भी एनआईटी में जो भी रेस्पेक्टिव एनआईटी आपको मिला है उनके नोटिफिकेशन में आपको ये फॉर्मेट मिल जाएंगे, तो वहां से फॉर्मेट की कॉपी निकाल के आप उसको फिल करके सबमिट कर सकते हो, ले जा सकते हो अपने साथ में. ओके, तो अपने अपने एनआईटी जो आपको अलॉट हुए हैं वहां से आप इस तरीके का फॉर्मेट आपको मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हो. देन नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स आर ओरिजिनल सर्टिफिकेट ऑफ कैटेगरी. इफ यू बिलोंग टू ओबीसी कैटेगरी, ओके, एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, देन you have to keep with you this original certificate of category, and this must be issued on or after 1st April 2022. तो फ्रेश होना चाहिए 1 अप्रैल के बाद का सर्टिफिकेट जो आपने सबमिट किया होगा, ठीक है ना, ऑनलाइन सबमिट किया होगा, डॉक्यूमेंट वेरीफाई हुआ होगा, उसी की ओरिजिनल कॉपी आपको साथ में कैरी करना है. एंड अंडरटेकिंग टू बी सबमिटेड बाई ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट इन द फॉर्मेट प्रोवाइडेड. ओके, इसका भी फॉर्मेट आपको प्रोवाइड किया गया होगा सीसीएमटी की तरफ से, तो उस फॉर्मेट में अंडरटेकिंग भी आपको साथ में रखना है, ओरिजिनल अंडरटेकिंग. ओके, ओबीसी कैटेगरी के लिए ये आपको सीसीएमटी की वेबसाइट पे, यू कैन गेट इट फ्रॉम सीसीएमटी वेबसाइट और रेस्पेक्टिव कॉलेज. देन ओरिजिनल इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट फॉर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट. ओके, जिन्होंने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी फिल किया है उनको अपना इनकम सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करना है. एंड सर्टिफिकेट मस्ट बी इशूड ऑन और आफ्टर 1st अप्रैल 2022. जो आपने सब डिपॉजिट किया होगा ऑनलाइन काउंसलिंग के टाइम पे, वही आपको उसकी ओरिजिनल कॉपी आप ले जा सकते हो साथ में. ओके, एंड इफ यू आर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट तो इसका भी सर्टिफिकेट आपको साथ में लेके जाना है. ओके, अलोंग विथ फोटो कॉपी. Then these are also important and about which many students ask their queries. So these are original transfer certificate. So this is to be obtained from your college, BTech college, engineering college. Okay, जहां से आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, from there you will get transfer certificate, TC. Okay, and original conduct certificate. Conduct certificate is also called character certificate. Okay, तो ओरिजिनल कंडक्ट सर्टिफिकेट लेके जाना है आपको, अपने कॉलेज से ही लेना है आपको ये भी, ठीक है. एंड ओरिजिनल माइग्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ लास्ट इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी अटेंडेड. तो ये तीन चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, टीसी, कंडक्ट सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट, और ओरिजिनल माइग्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ लास्ट इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी अटेंडेड. ठीक है, ये आपको अपने कॉलेज से ही तीनों मिलेंगे. अब ये हो सकता है कि there may be some students who have already got these documents, they have with you, carry them. Okay, और ऐसा भी हो सकता है कि they have single copy. Okay, in one copy they have both TC as well as conduct certificate. आपकी जो TC है उसमें mentioned है कि TC ऑब्लिक कंडक्ट सर्टिफिकेट, तो आपको सेपरेट लेके जाने की जरूरत नहीं है, वही काम करेगा. अगर दोनों एक ही जगह है, एक ही फाइल में है, टीसी कंडक्ट सर्टिफिकेट, वही आपको ले जाना है साथ में. ओके, एंड इफ दे प्रोवाइड सेपरेटली तो सेपरेटली उसको लेके जाना है. ठीक, माइग्रेशन सर्टिफिकेट जनरली रिक्वायर्ड होता है जब हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफर लेते हैं. आपको बीटेक कॉलेज दूसरे स्टेट में और जो एमटेक करने जा रहे हो दूसरे स्टेट में जा रहे हो, वहां पे जनरली रिक्वायर्ड होता है माइग्रेशन सर्टिफिकेट. तो आप अपने कॉलेज से ये ले लो, माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी अगर मिल जाएगा आपको तो ये आपको चाहिए वहां पे, बिकॉज डिफरेंट अलग अलग स्टेट से आप लोग ट्रांसफर होंगे. ठीक है, एनआईटी, किसी भी एनआईटी में जाएंगे तो ये भी कॉलेज से पहले ही लेके रख लो, क्योंकि अभी आपके पास 1 वीक का टाइम है. ठीक है, उससे पहले पहले अपने ये सारे डॉक्यूमेंट आपको प्रिपेयर करके रखने हैं. ओके, देन मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट इन द फॉर्मेट प्रोवाइडेड. ओके, तो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपको चाहिए. ये कहां से मिलेगा मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट? अपने नियर बाई गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाएंगे आप, जो वहां पे सुपरिटेंडेंट होते हैं, पूरे उसके इंचार्ज होते हैं, वो आपको प्रोवाइड कर सकते हैं.
या जो सीएमओ होता है ना, एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर सीएमओ होता है, ठीक है ना, तो सीएमओ ऑफिस में जाके भी आपको ये मिल जाएगा। किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप जाओगे, दे विल प्रोवाइड यू मेडिकल सर्टिफिकेट, ठीक है ना। मेनली डिस्ट्रिक्ट में जो एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है, सिविल हॉस्पिटल, वहां पे ये इजीली आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसका कुछ फीस होता है, एक फॉर्म फिल करवाएंगे, अलग अलग कुछ टेस्ट करवाएंगे आपके, ठीक है ना। तो वो सारी एक्टिविटी में आपको 1 डे रिक्वायर्ड हो सकता है। तो इसको एज सुन एज पॉसिबल आप मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट अपने नियर बाई गवर्नमेंट कॉलेज से उसको ले लें एक बार, ओके। देन फोटो आईडी प्रूफ एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स, ठीक है। कॉपी ऑफ आधार कार्ड इज कंपलसरी। अब आधार कार्ड की कॉपी लेके जाना है, कंपलसरी है, यही आपका आईडी प्रूफ चल जाएगा। या पैन कार्ड आपके पास है, पैन कार्ड ले जा सकते हैं, ठीक है, या कोई और डॉक्यूमेंट है आईडी प्रूफ में, वो भी साथ में ले जा सकते हैं, लेकिन आधार कार्ड की कॉपी कंपलसरी है। और पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ रेडी रखने, 2 नंबर रफली मैंने एस्टिमेट दिया, मे बी मोर रिक्वायर्ड 4, ठीक है। तो फोटो स्टेट, किसी भी फोटो स्टूडियो में जाते हो जनरली वो 8 की आपको 8 फोटो एक साथ बना के देते हैं, आप वो पूरा सेट लेके जाओगे, ओके। ऐसा नहीं कि 2 ही लेके जाओगे, 2 से ज्यादा भी रिक्वायर्ड हो सकता है। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स विच आर रिक्वायर्ड एंड यू हैव टू प्रिपेयर देम। नाउ फ्रॉम NIT सूरतकल, इफ वी टॉक अबाउट NIT सूरतकल, ओके, तो NIT सूरतकल का अलग से उन्होंने स्पेसिफाई किया हुआ है, इफ एनी सर्टिफिकेट इज इन लैंग्वेज अदर देन हिंदी और इंग्लिश और कन्नड़। अब देखो कर्नाटका की जो लोकल लैंग्वेज है वो है कन्नड़, ठीक है ना। तो आपका सर्टिफिकेट अगर हिंदी में है, इंग्लिश में, कन्नड़ में है, तो यही चलेगा आपका। बट इफ योर सर्टिफिकेट इज इन एनी अदर लैंग्वेज अदर देन दीज 3 लैंग्वेजेस, देन यू हैव टू गेट दैट कन्वर्टेड इनटू इंग्लिश, ओके। और ये आपको कंपिटेंट अथॉरिटी से आपको लेना है ये, ठीक है। तो ये चीज भी आपको पहले से प्रिपेयर कर लो जिस स्टेट में जा रहे हो, ठीक है। तो कुछ स्टेट तो ऐसे हैं जहां पे हिंदी और इंग्लिश में ही सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है ना। और लेकिन कुछ स्टेट है जैसे कन्नड़ में, वहां पे अलाउड है, कन्नड़ में आपका है अलाउड है, ठीक है ना, क्योंकि जो कर्नाटका के बच्चे उनके लिए। इसी तरीके से हो सकता है कि जालंधर में अगर पंजाबी में है वो अलाउड हो, लेकिन उसके अलावा किसी लैंग्वेज में, हिंदी, इंग्लिश या पंजाबी में अलाउड हो सकता है, किसी और में है तो ट्रांसफर कराना पड़ेगा। तो ये इन्फॉर्मेशन अलग अलग है सभी इंस्टीट्यूट की, तो अपनी अपनी NIT जो आपको मिली है उनके नोटिफिकेशन में आप चेक कर लो सर्टिफिकेट की लैंग्वेज क्या चाहिए उनको, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश, और कुछ जगह पे लोकल वाला अलाउड होता है, जैसे यहाँ पे कन्नड़ अलाउड है। हिंदी इंग्लिश में है तो सभी जगह चलेगा, एवरीवेयर, राइट। तो अगर मान ले किसी और लैंग्वेज में है, सपोज आपका कन्नड़ में है, लेकिन आपको NIT इलाहाबाद जाना है, तो वहां पे कन्नड़ में नहीं चलेगा, वहां पे आपको हिंदी इंग्लिश में ही रखना पड़ेगा ट्रांसफर करा के। तो ये आप पहले से प्रिपेयर कर लें, ओके। सो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आप सभी को काम आएगी। नाउ आई होप all of you have understood about this important information, and please keep ready all your documents, right? I wish you all the best। 11 से स्पेशल राउंड 3 के बाद मेनली फिजिकल रिपोर्टिंग सभी जगह पे होगी, तो अपने अपने इंस्टीट्यूट की फिजिकल रिपोर्टिंग का नोटिफिकेशन चेक करते रहें। ऑल द बेस्ट।